Okay, so today we will solve some theory questions which appeared in previous CAT exams. तो लास्ट लेक्चर है आज KTG का. So without wasting any time, let's start solving this kind of questions. So first question: for a gas, R by CV is 0.4, where R is the universal gas constant. CD is the molar specific heat at constant volume. The gas is made up of molecules which are, so which type of molecules we are talking about ऐसा पूछा है. लास्ट ईयर के CET में था ये क्वेश्चन. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मायर्स रिलेशन याद होगा. Cp is equal to Cv plus R. So Cp is Cv plus R. हमको पूछा है कि कौन से टाइप का गैस मॉलिक्यूल है. तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट पता है, मतलब गामा वैल्यू पता है, जैसे गामा वैल्यू 5/3 मतलब मोनो एटॉमिक गैस, गामा वैल्यू 7/5 मतलब रिजिड डायटोमिक गैस, गामा वैल्यू 9/7 मतलब नॉन रिजिड. तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय Cv कर लेंगे. तो Cp by Cv, Cp by Cv, Cv by Cv, R by Cv. तो Cp by Cv और इक्वल टू 1 प्लस R by Cv. तो Cp by Cv आपको यहाँ पे गामा होता है 1 प्लस R by Cv इज 0.4. तो 1.4, तो गामा की वैल्यू 1.4 मतलब 7/5 है ना, मतलब ये आ गया रिजिड डायटोमिक गैस. तो ओनली बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ gamma you can say कि गैस कौन से टाइप का है. नेक्स्ट क्वेश्चन: two spherical black bodies of radius r1 and r2 with surface temperature T1 and T2 respectively radiate same power, then r1 is to r2 is. आपको सबसे पहले स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन पता होना चाहिए. पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू सिग्मा epsilon, where epsilon is coefficient of emission, sigma is Stephen's constant, T raised to 4 into area. तो ये था आपका स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. पावर रेडिएटेड इज epsilon sigma a T to the power 4. आपको बोला है कि हमारे पास दो स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज हैं. तो फॉर ब्लैक बॉडी इमिसिविटी कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज ऑलवेज 1. तो देयरफॉर ब्लैक बॉडी के लिए आता है सिग्मा a T to the power 4, मतलब E इक्वल टू सिग्मा 4 pi r1 square T power 4, क्योंकि एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 pi r square. Therefore you can say that E is proportional to r1 square T to the power 4, right? अब आपको बोला है कि दोनों बॉडीज जो है वो सेम पावर रेडिएट करते हैं. तो ये पावर सेम मतलब E1 इक्वल टू E2, सेम पावर. तो E1 मतलब r1 स्क्वायर बाय द वे मैंने यहाँ पे r1 नहीं लिखना चाहिए था इनिशियली, तो नो इश्यूज. ओके, तो r1 स्क्वायर T टू द पावर 4 T1 स्क्वायर T1 raised to 4 equal to r2 square T to the power 4. आपको रेशियो ऑफ r1 raised to r2 चाहिए, तो r1 upon r2 square is T2 by T1 raised to 4, मतलब r1 by r2 is T2 by T1 का 4th पावर का स्क्वायर रूट लिया है दोनों साइड पे, तो ये 2 आ जाएगा. तो T2 by T1 स्क्वायर. मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन इजी था. Power emitted is equal to epsilon sigma a T to the power 4. ब्लैक बॉडी के लिए epsilon की वैल्यू 1 होती है फॉर अ ब्लैक बॉडी. तो E is equal to sigma a होता है 4 pi r square, क्योंकि स्फीयर है T to the power 4.
तो E is proportional to R square T power 4, therefore E1 equal to E2 ऐसा दिया हुआ है हमको दिया हुआ है ये, तो R1 square T to the power 4, T1 to the power 4, R2 square T2 to the power 4, तो R1 by R2 का square T2 by T1 raised to 4, तो R1 by R2 is equal to T2 by T1 to the power 2. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 में आया था, तो यू सी तीनों क्वेश्चंस 2020 के हैं और इजी क्वेश्चंस हैं। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस is 200 meter per second. What will be the root mean square velocity of the molecules if the molecular weight is doubled and absolute temperature is halved? आपको पता होना चाहिए कि VRMS is equal to under root of 3 RT by M. So VRMS is proportional to T by M का square root. So V2 by V1 is equal to under root of T2 by T1, M1 by M2. But according to the given condition, क्या बोला है, मॉलिक्यूलर वेट को डबल किया, मतलब M2 को 2 टाइम्स ऑफ M1 किया और टेम्परेचर को हाफ किया, तो T2 को T1 by 2 किया, राइट? तो you have ratios from here. So because here M2 equal to 2 M1, तो M1 by M2 is equal to half, और यहाँ से T2 by T1 equal to half. Therefore V2 by V1 equal to root of T2 by T1 is half, M1 by M2 is half. Therefore V2 is equal to under root of 1 by 4 times of V1. So under root of 1 by 4 is 1 by 2, मतलब V1 by 2, और V1 है 200, 200 by 2 is 100 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस है, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आया 2019 में। Cp and Cv are molar specific heats of an ideal gas at constant pressure and volume respectively. If lambda is the ratio of specific heats, जिसको हम लोग गामा बोल रहे थे उसको हमने लैम्बडा बोला है, मतलब गामा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये गामा है यहाँ पे गामा, ओके, एंड R is universal gas constant, then Cp is equal to, बाय द वे ये हमने पहले यूज किया हुआ है लेकिन इट्स ओके, वी जस्ट व्हाट वी नो इज, हमको पता है गामा Cp by Cv है, इन्होंने तो बोला भी है वैसा रेशियो है ये। Also हमको पता है Myers relation, Cp plus Cv equal to R, right? ऐसा ही है ना, तो you need to understand कि ऐसा नहीं है, it is Cp equal to Cv plus R, मतलब Cv is equal to Cp minus R, equation number 2, equation number 1. तो substituting equation number 2 in 1, तो आपको मिलेगा गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cp माइनस R। हमको Cp पूछा है इन टर्म्स ऑफ गामा, तो गामा Cp माइनस R इक्वल टू Cp, therefore gamma Cp माइनस gamma R इक्वल टू Cp, therefore आपको मिल जाएगा यहाँ से gamma Cp minus Cp equal to gamma R, okay, then because you have to solve just for Cp, आपको Cp में इंटरेस्ट है तो that's why, तो आपको मिल जाएगा ये gamma minus 1 Cp equal to gamma R, तो Cp is equal to gamma R upon gamma minus 1, gamma R upon gamma minus 1, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सिमिलरली Cv के लिए भी सॉल्व कर सकते हो इसको, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, गामा इज रेशियो स्पेसिफिक हीट से पता है, दैट्स इट। सो Cp by Cv, Cv is Cp minus R, तो Cv की जगह पे Cp minus R लिखा है और उसको सिंपलीफाई किया है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 2019,
the equation of state for 2 gram of oxygen at a pressure P and temperature T when occupying volume V will be. आपको पता होना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT होता है, तो you should know that PV is equal to nRT होता है. आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स इज मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये 32 आता है. एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे ऑक्सीजन का 16, तो O2 गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ये मॉलिक्यूलर होता है, दो ऑक्सीजन आइटम मिला के बनता है, तो 32 होता है. Therefore you will have PV is equal to 2 ग्राम दिया है, स्मॉल m आपको 2 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट 32 है, और ठीक हो गया सॉल्व. PV is equal to 1/16 RT, ऑप्शन नंबर सी. इतने सिंपल से क्वेश्चंस है, they are very simple questions. Again 2019 गुड. तो तीन क्वेश्चंस आ ही रहे हैं बेसिकली हर साल. The RMS speed of oxygen molecule in a gas is U. If the temperature is double and the molecules dissociates into two atoms, the RMS speed will be. ये अच्छा है. Oxygen molecule, इनका RMS speed, initial RMS speed ये है U. अब टेम्परेचर जो T1 था उसको डबल कर दिया, 2T1 कर दिया, तो ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे ये हो गए सेपरेट, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया. अब हमारे पास इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स है. ओके, अब ये एटॉमिक गैस है, मतलब नाउ वी डोंट हैव अ मॉलिक्यूलर गैस, वी हैव एटॉमिक गैस. व्हाट विल बी द आरएमएस स्पीड इन दिस केस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा है आपको, इसलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए केस 1, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2. इसमें V1 इक्वल टू √3RT by M1, ये T1. केस 2 आपको बताना चाहिए एटॉमिक ऑक्सीजन, तो V2 is equal to √3RT2 by M2. ओके, T2 is equal to 2T1 बताया है. M2 देखो, पहले इसका 16 और इसका 16, टोटल मॉलिक्यूलर वेट था 32. अब ऑक्सीजन अलग हो गया, तो अब M2 होगा M1/2, क्योंकि एटॉमिक सिंगल एटम का मॉलिक्यूलर वेट लेना पड़ेगा अभी. ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. दो एटम अलग हो गया, मॉलिक्यूल नहीं है, तो एटॉमिक वेट लेंगे हम. So that is what you need to know. Therefore, V2 is equal to √3R, but T2 is 2 times of T1 and M2 is M1/2. Therefore, V2 is equal to √3R T1 by M1 into 4. ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन 4, और 4 रूट से बाहर मतलब 2 आ जाएगा. 2 √3R T1 by M1, that is 2 times of U, क्योंकि ये है इनिशियल वेलोसिटी V1, जिसको हमने बेसिकली U भी बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये U भी बोला है, इसको V1 को U बोला है, और क्या, तो 2U, ऑप्शन नंबर सी. तो वाज अ वेरी सिंपल एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन 2018. अब the molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and constant volume is Cp to Cv. R is universal gas constant and the ratio of Cp to Cv is gamma, then Cv is equal to. तो you remember here, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी. तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे आपको Cv पूछा था आंसर में फाइनली,
और यहाँ पे आपको सी भी पूछा है, मतलब सिंपल है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे वापस बोलोगे आप दैट गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी। फिर आप बोलोगे कि सी पी तो सी वी प्लस आर होता है, सिंस मायर्स रिलेशन, मायर्स रिलेशन पता है आपको, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने CV की जगह पे CP माइनस आर लिखा था, यहाँ पे CP की जगह पे CV प्लस आर लिखा है, दैट्स इट। तो गामा CV इज इक्वल टू CV प्लस आर, मतलब गामा CV माइनस CV इक्वल टू आर, गामा माइनस 1 CV इक्वल टू आर, therefore CV is equal to R upon gamma minus 1। ये मेथड 1 है, मेथड 2 भी है। मेथड 2 कैसे करोगे, सिंपल, अभी अभी हमने देखा Cp इज इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1, देखा कि नहीं, यहाँ पे देखा ना, फाइनली Cp इज गामा R अपॉन गामा माइनस 1, यस, ये तो देखा ही हमने। therefore can I write down this as, इसको तो मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ ना, Cp by gamma equal to R upon gamma minus 1, yes, but Cp by Cv is gamma, therefore Cp by gamma is Cv। तो ये जो है ये Cv ही है डायरेक्टली, ओके। सो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, I could have written here, therefore Cv is equal to R upon gamma minus 1 since Cp by gamma is Cv। हो गया सॉल्व, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एनर्जी इज incident on the surface at a rate of 1000 joule per minute if coefficient of absorption is 0.8, coefficient of reflection is 0.1, then the heat energy transmitted by the surface in 5 minutes is, very good question। आपको पता होना चाहिए A plus R plus T equal to 1, coefficient of absorption plus reflection plus transmission is equal to 1। कहाँ से आया, तो यहाँ से आता है। मान लो हमारे पास एक सरफेस है, सम सरफेस, इस पे Q अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुआ, तो क्या होगा, QR रिफ्लेक्ट हो जाएगा, QT ट्रांसमिट हो जाएगा, और सम अमाउंट QA विल बी एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब टोटल हीट जो इंसिडेंट हुआ है उसके 3 पार्ट्स हो गए। कौन से 3 पार्ट्स हो गए, ईदर एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। तो मैं अगर Q को डिवाइड कर देता हूँ ऑन बोथ साइड्स, मैं आपको थियरी बता रहा हूँ ये, तो हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन आता है, QA by Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू दैट ऑफ इंसिडेंट is coefficient of absorption, QR by Q amount of heat reflected to that of incident is coefficient of reflection, and this is coefficient of transmission। तो A plus R plus T equal to 1 ऐसा आता है आपके पास, R equal to 1, मैं तो याद ही रखता हूँ R equal to 1, so A R T, A plus R plus T equal to 1। अब 1 equal to आपको coefficient of absorption 0.8 दिया है, रिफ्लेक्शन आपको 0.1 दिया है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा T इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 मतलब 0.1, तो T मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0.1 है। ये T और वो टाइम T दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। आपके पास ये कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है 0.1। Now what you know is, but coefficient of transmission T is total amount of energy transmitted
ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट। तो क्यू टी है ना, कितना एनर्जी ट्रांसमिट हुआ, द हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड, ऐसा ही पूछा है, द हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड दैट इज टोटल एनर्जी इंसिडेंट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ओके राइट। बट कितने टाइम में, कितने टाइम इंटरवल में, तो ये भी पता होना चाहिए। क्यों कर रहा हूं मैं, देखो द पॉइंट इज हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, इफ यस तो आगे समझेगा, इफ नो तो फिर पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास क्यू अमाउंट ऑफ हीट एक सब्सटेंस पे इंसिडेंट हुआ, उसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ट्रांसमिट हुआ। तो टोटल एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हुई या रिफ्लेक्ट हुई या ट्रांसमिट हुई। तो मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड बाय क्यू कर दिया, तो मुझे ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1 मिलेगा, राइट। यहाँ पे हमने कहीं पे भी अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम की बात नहीं की, एक सेकेंड में हुआ क्या बात नहीं की, हमने बोला टोटल है। हमने टाइम, यहाँ पे टाइम की बात ही नहीं की, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट है क्यू। पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन जूल पर मिनट, मतलब ये पर यूनिट टाइम में है, ओके। तो ये पर मिनट में है, तो मुझे टोटल मिनट से, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं लिखता हूँ डी क्यू बाई डी टी। तो सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने डी क्यू बाई डी टी लिखा है इसको, दैट्स इट। तो डी क्यू बाई डी टी आपको दिया है 1000 जूल पर मिनट, और स्मॉल टी जो है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है, और कैपिटल टी जो है ये 5 मिनट है, 5 मिनट। मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी में जूल पर मिनट में दिया है। तो 1000 इंटू 0.1 इंटू 5 दैट इज 500 जूल। तो 500 जूल आपके पास एनर्जी आ गया विच इज ट्रांसमिटेड। 1000 में से 500 ट्रांसमिट हो गया। So this is how you are supposed to solve this question. अगला क्वेश्चन, for a rigid diatomic molecule, universal gas constant R is NCP, where Cp is molar specific heat at constant pressure and N is a number. N is equal to, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। रिजिड डायटोमिक बोला है, तो हमको पता है कि फॉर अ रिजिड डायटोमिक, फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमको पता है गामा होता है Cp बाय Cv दैट इज इक्वल टू 7/5 सॉरी 7/5, ये 7/5 होता है। दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो। हमको चाहिए n, और हमको पता है, मतलब यहाँ से आपको मिल गया Cv इज इक्वल टू 5/7 Cp, यहाँ से आपको मिल गया। फ्रॉम मायर्स रिलेशन हमको पता है, फ्रॉम मायर्स रिलेशन what we know is, from Myers relation we know that Cp is equal to Cv plus R, but Cv is 5/7 Cp, sorry, yes, Cp plus R, गुड। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से Cp minus 5/7 Cp इक्वल टू R, therefore आपको मिल जाएगा ये 7 minus 5 मतलब 7 Cp minus 5 Cp by 7 equal to R, मतलब R equal to 2 Cp by 7। गिवन क्या था, R equal to n Cp, मिला क्या, R equal to 2/7 Cp। therefore comparing 1 and 2 you have n equal to 2/7। 2/7 कितना होता है पता कर लो,
तो 2/7 is 0.2857 ऑप्शन नंबर सी। तो हमने क्या किया, हमको R इक्वल टू NCP दिया है, हमको ये बताया है कि रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब गामा विच इज Cp/3 विच इज 7/5, तो Cp इज इक्वल टू 5/7 Cp। फिर माइनस रिलेशन यूज किया, Cp इक्वल टू Cp प्लस R, बट Cp था 5/7 Cp, तो Cp इक्वल टू 5/7 Cp प्लस R, तो Cp माइनस 5/7 Cp इक्वल टू R। तो R आपको मिल गया 2/7 टाइम्स ऑफ Cp, मतलब आपको n की वैल्यू मिल गई 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas has pressure P, volume B, temperature T if m is mass of each molecule and k is Boltzmann constant, the density of gas is। तो आपको डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, मास ऑफ ईच और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के ऐसा पूछा है। इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, गुड, which means that you know PV is equal to mass in gram upon molecular weight, RT होता है, ओके, राइट, गुड। तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, of course you can solve this, P equal to small m by V RT by capital M। स्मॉल m मास होता है, कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट होता है, गुड। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है डेंसिटी, तो प्रेशर P इज डेंसिटी रो RT by M। हमें क्या पूछा है, हमें डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी इज PM by RT, है ना, PM by RT। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, ऐसा ऑप्शन में नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए R होता है NKT, तो PM अपॉन NKT, ओके, तो PM अपॉन NKT। अब ऐसा भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन है बट आपको वो दिखना जरूरी है। यहाँ पे ये कैपिटल M है हमारे पास, सॉल्यूशन में कैपिटल M है और आंसर में स्मॉल m है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स इज m बाय कैपिटल M और n अपॉन, है ना, यू नीड टू नो दिस हियर दैट एवोगैड्रो नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑफ कोर्स एवोगैड्रो नंबर, ये पता होना चाहिए, ओके। सो दिस इज, अगर आपको ये पता है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस, क्योंकि molecular weight upon Avogadro number gives you small m again. Therefore, you have rho density as P small m by kT. है क्या PM? Yes, option number A. मैं वापस बता देता हूँ क्वेश्चन, PV is equal to nRT, n is mass upon molecular weight, small m by capital M RT। तो मैंने सिर्फ शिफ्ट कर दिया है, V को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, तो मास अपॉन वॉल्यूम हमको मिल गया डेंसिटी, तो P मिल गया डेंसिटी RT by M, राइट। तो हमको डेंसिटी मिल गया PM अपॉन RT, बट R is Na into K, but then M upon Na, molecular weight upon Na is small m mass, तो आपको मिल गया डेंसिटी। तो देखो the problem here lies mostly in कि आपको एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो वो एक बार देख लो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, दैट यू शुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming the expression for pressure exerted by the gas on the wall of container, it can be shown that the pressure, आपको याद होगा आपने प्रूव किया था प्रेशर इज 1/3 डेंसिटी इनटू v स्क्वायर, है ना, आपने ये प्रूव किया है थियरी क्लासेस में, हम लोगों ने ये प्रूव किया है, ओके। सो और
इफ यू रिमेंबर एक इक्वेशन आता है, चलो मैं इससे आगे ले जाता हूँ, ये हमने प्रूव किया है तो क्योंकि ये याद रहता है इसलिए मैं यहीं से आगे स्टार्ट करूंगा। तो प्रेशर इज 1/3 मास पर यूनिट वॉल्यूम v स्क्वायर। यहाँ पे ओनली कंफ्यूजन इज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ये वेलोसिटी है, डिफरेंस समझ लेना। ओके अब आपको पूछा है इट कैन बी शोन दैट द प्रेशर का पूछा है, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या 2/3 v, ये वॉल्यूम का v है और ये हाफ, क्योंकि सिर्फ 2 एडजस्ट किया मैंने, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, दैट्स इट, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है हमने, नथिंग एल्स। तो ये आ जाएगा 2/3 v काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो यूनिट वॉल्यूम है इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो आ गया ये प्रेशर इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रेशर का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, हमने ये डिराइव किया है, एक ही बड़ा डेरिवेशन था, बहुत बड़ा डेरिवेशन है ये इस पूरे चैप्टर में, एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन। ओके, so this is how you are supposed to solve such questions. So ultimately we have completed kinetic theory of gases. मैंने पिछले CET में आए हुए 11 क्वेश्चंस लिए हैं, टोटल हमने इस चैप्टर में भी 40 क्वेश्चंस लिए हैं। देयर आर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स CET एग्जाम which you should be doing by yourself. So we will stop here for the day.